So good afternoon everyone. Let's start our session. Today will be our last session on this particular reading where we'll be finishing up our analysis on Vijay Joshi's article, The Long Road, his book, The Long Road, and the second chapter toward the horizon. Now, we have already talked about the overall walkthrough of the economy. ये हम ऑलरेडी पूरा डिस्कशन कर चुके हैं. बट आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो मेजरली इस वाले पीरियड को लेके, ये वाला जो पूरा पीरियड है, हम इस वाले पीरियड के बारे में बात करेंगे. ठीक है. एंड एज आई टोल्ड यू दैट दिस रीडिंग स्टॉप्स एट 2015, but we will have a small discussion on what happened after 15. Although what I'll also do is I'll update the PPT with those aspects as well. ठीक है. तो हम ये वाले years के बारे में आज डिस्कशन करेंगे. Political discussion we had already done, where we had talked about that this period is Modi 2.0, this period is Modi 1.0, this period from 2004 onwards till 2014 is Manmohan Singh 1.0 and 2.0. एंड ये जो पीरियड है 2003 से लेके 1999 वाला, ये वाला जो पीरियड है 2004 तक का जो पीरियड है, ये वाला पीरियड इज अटल बिहारी वाजपेयी. एंड इससे पहले भी 2 साल का कुछ पीरियड था, और उससे पहले ये जो पीरियड था ये पॉलिटिकली इनस्टेबल पीरियड था जहां पर बहुत सारी पार्टीज आई थी. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पीरियड, तो हमने बात करी थी कि दिस पीरियड इज राजीव गांधीज पीरियड, देन यू हैव चंद्रशेखर, देन यू हैव नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. ठीक है, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. तो ये हमारा पॉलिटिकल बेसिकली expands था in this particular period. Now we have already talked about the politics of it now, and we had also talked about prosperity. We had also talked about Gini coefficient. Now my question to you guys is, हमने Gini coefficient last class में बात करा था, and we are going to talk about it in today's class as well. So guys, tell me about it that Gini coefficient अगर कम होगा तो बेटर होगा कि Gini coefficient क्या कहते हैं. पहले तो रेंज बताओ, Gini coefficient की रेंज क्या होती है. What is the range of Gini coefficient? 0 to 1, or I can say 0 to 100. Now, when I say it's closer to 0, what does that mean? Does it mean that the country has a lot of inequality, or does it mean that the country has a lot of equality? Equitable growth कौन सा होगा? Equitable economy कौन सी होगी? Closer to 0 or closer to 1? Gini coefficient, guys. Last class we did that. Closer to 0? Fine. And the more is it is closer to 1 or closer to 100. अगर आप scale of 100 पे ले लो, तो जितना आप 1 के पास या 100 के पास होगे उतना ज़्यादा inequitous country होगा. So we'll talk about this today. So keep in mind this particular concept. Then we had also we had framed this our entire picture of the chapter, where in one go we could have an overlook of the entire reading. So even while preparing notes, guys, especially this is something that will come very handy when you are preparing. A lot of you will be preparing for civil services, and something which I realized by actually while giving prelims, and the matter of fact that I've cleared it 5 times, I know that how you can summarize these notes. So summarization of notes and summarization of concept is extremely important, because when it comes to revision, you cannot revise everything in one day. So prelims happens on one particular day, or any particular exam happens on one particular day. Mains के लिए हाँ, you have at least 9 to 10 days to prepare for it. But prelims तो एक ही दिन होगा, तो आप सारे के सारे subjects एक दिन कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए you should have an approach where you should have very concise notes. ठीक है. there is a subject called polity जो आप पढ़ोगे. ठीक है. polity is through a book called Lakshmikant. Now वो लक्ष्मीकांत जो है वो 700-800 पेजेस की है. And if you see my notes are in 20 sides. 20 sides, that means 10 pages, 20 sides में मेरी पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत है. And there cannot be a question either in this examination, मतलब आप एक पर्टिकुलर साल का ले लो, या अगले 10 साल के बाद भी कोई क्वेश्चन कोई उठा के देख लो, अगर वो फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटी है तो उसी से आ रहा होगा, नोट से ही आ रहा होगा. So that is how you need to be efficient. Similarly history, similarly economics, you need to be very smart with your note making exercise. So small handwriting में एक पेज में जितना आप concise करके बना सकते हो उतना बनाने की कोशिश करो. I think I did not send you the econometrics notes, entire econometrics on 2 sides, that is 1 page.
So that is how efficient you need to be when you have to adopt that note making approach. तो ये उसी तरीके का analysis इस PPT पे भी है, where everything that we are going to talk about is there, although it's not in detail, but you can always expand this. Then we had also talked about the decadal growth कि हमने पिछले वाले growth के बारे में बात करी थी, जो नेहरूवियन पीरियड का हमने उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. हमने उसके बाद 60 से 64 से लेके 80 के बीच में ये बात करी थी, वेयर वी टॉक्ड अबाउट दैट हाउ इंदिरा गांधी मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट ओरिएंटेशन बिकॉज शी गॉट स्नब्ड फ्रॉम द यूएस despite the fact that she had undertook the devaluation which the IMF had called for, and because of the kind of economic policies that we were following and the kind of welfareist measures that we asked our public sector enterprises to do, our capital to output ratio actually increased. तो हमने ये देखा था हमारा capital to output ratio in this period had drastically increased, जिसकी वजह से आपकी efficiency of capital गिर गई and ultimately your GDP growth rate will fall down. So if you see GDP growth rate हमारा गिर गया है. So we had talked about this command and control model, socialistic model, इन सारी चीज़ों के बारे में we had already had a discussion. की highlights के बारे में हमने growth के बारे में discussion कर चुके हैं, white elephants के बारे में कर चुके हैं, and we had also talked about the fact that what were all the policies by Indira Gandhi. So emergency के बारे में बात करा, FERA के बारे में बात करा. We had also talked about something called MRTP, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था. It's not there in the PPT, but MRTP 1967 के बारे में we had a discussion, whereby आप monopolies को and even restrictive trade practices को control करने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है. This has been abolished by after the 1991 reforms, and now what we have, especially after 2002, what we have is Competition Commission of India 2002, and उसका जो actual implementation है 2009 से शुरू हुआ. So this is what we have, and instead of FERA we have something called Foreign Exchange Management Act. So and now you have, this is something that you will also understand in probably Indian economy too, and more so I think you should understand this in international economics. But अगर वहाँ पर भी नहीं है तो probably in some class I will deal with this, something called as capital account convertibility and current account convertibility after the 1991 reforms. Or let me just explain this to you, because I don't think that you will come across this term, and this is a very important topic. So what happened was there is a concept called convertibility. सुना है किसी ने? Convertibility किसी ने सुना है? क्लास 11-12 में होता है क्या गाइस आजकल? ये कंसेप्ट है आजकल क्लास 11-12 पढ़ा है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, या करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी. ओके. सो गाइस रिमेंबर हमारा बीओपी, हमने जब बीओपी करा था तो बीओपी में 2 अकाउंट्स करे थे. वन वाज योर करंट अकाउंट, द अदर वाज योर कैपिटल अकाउंट. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर 1991 वाज दैट वी सेड, इससे पहले क्या होता था, इससे पहले हम कहते थे कि बॉस अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो हम आपको बताना पड़ेगा कि आप किस लिए फॉरेन एक्सचेंज यूज कर रहे हो, कौन कौन से यूजेस के लिए आप यूज कर सकते हो, कौन कौन से यूजेस के लिए आप नहीं यूज कर सकते हो, कितना फॉरेन एक्सचेंज यूज कर रहे हो. अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मांग रहे हो तो अगर फॉरेन एक्सचेंज अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा उतना ही फॉरेन एक्सचेंज, सो दैट कंट्री डेफिसिट में ना हो. तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज को बहुत टाइटली रेगुलेट किया जाता था 1991 से पहले, एंड द रेगुलेटिंग एक्ट वाज बेसिकली फेरा जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट. बट in an open economy, especially after 1991, you cannot have a regulating economy, you have to manage the economy. ठीक है. तो what we said that अब after, especially after 1994, there's something called Lerm's Wala system, which I'll not go into, but essentially what you said was that अब citizens जो हैं country के, citizens, corporates, organizations, ये सारे के सारे जो हैं, ये अगर ट्रेड के लिए एक्सटर्नल करेंसी मांग रहे हैं या रुपी मांग रहे हैं तो वो एक्सचेंज फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए. व्हाट आई मीन टू से इज दैट you introduce what is called as current account convertibility. Now what does this current account convertibility mean? That you can change rupee into dollar or a foreign currency, or dollar into rupee. You can convert rupee into dollar or dollar into rupee without
any kind of regulation or permission. You don't need to ask anyone's permission or anyone's regulation if this is done on account of current account transaction. That means अगर आप ट्रेड के लिए ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो आप पे कोई रेगुलेशन नहीं है. देयर इज अ माइनर मॉडिफिकेशन है कि सपोज आप एजुकेशन के लिए जाते हो या मेडिकल हेल्थ के लिए किसी पर्पस के लिए जाते हो तो एक कैप होता है which is I think around $2 lakh, $200,000 to $2 lakh तक का होता है. टूरिज्म एजुकेशन हेल्थ इनके लिए $2 lakh तक के लिए है. बट दैट्स अ ह्यूज अमाउंट. ठीक है, आप 1.5 करोड़ रुपया नहीं खर्च करते हो इन चीज़ों के ऊपर यूजुअली. तो बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कह दिया कि आपका करंट अकाउंट जो है कन्वर्टेबल है. Whereas when it comes to your capital account, we have what is called as partial convertibility. We have partial convertibility. Again guys, I'm stressing the fact this is not given in your readings and it might be the case that ये कभी आप कहीं पर भी ना पढ़ो except for the fact कि रेनू कोहली की रीडिंग है आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में इंडियन इकोनॉमी में, उसमें slightly you touch base upon it. But let me I'm giving you a brief up so that things are much clearer. So partial convertibility क्या है? इसके अंदर आप कह रहे हो कि सिटीजन्स तो देखो लास्ट में है, जो रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, बट जो कॉरपोरेट्स हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ये सारी जो हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, इनको आपने काफ़ी हद तक अलाउ किया हुआ है कि आप बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. कैपिटल अकाउंट में क्या होता था? इफ यू रिमेंबर, कैपिटल अकाउंट में होता था हमारा मेजर आइटम होती थी इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन बोरोइंग्स. ठीक है, तो ये सारे जो हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट्स कैसे करता है. कॉर्पोरेट्स के केस में हमने कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक इश्यूज में पढ़ा था ना, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, या हम बाहर से एनआरआई डिपॉजिट लेते हैं, या ये बाहर से टैप कर रहे हैं मनी, ठीक है, बैंक्स टैप कर रहे हैं मनी. तो या corporates also dwell into what is called as ADRs and GDRs, ठीक है, American Depository Receipt and Global Depository Receipt. फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टॉक मार्केट में किसी कॉर्पोरेट को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है यूएस में, तो देन दे कैन बाय ADRs, American Depository Receipt खरीद सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर किसी फॉरेन एंटरप्रेन्योर को सपोज इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वो IDRs खरीद सकते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स खरीद सकते हैं. तो आपने इन सब के लिए पार्शली ओपन करा हुआ है और इनफ्लो आपने आराम से ओपन किया हुआ है, आउटफ्लो इतना आराम से ओपन नहीं है, तो उसमें कई बार परमिशंस चाहिए होती हैं. व्हाट डू वी मीन बाय इनफ्लो? कि अगर बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो आप इजीली अलाउ कर देते हो, चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो आप उसमें कैप्स ज़्यादा नहीं लगाते हो. बट अगर इंडिया वाले बाहर करते हैं तो आप कई बार रेगुलेशंस की जरूरत होती है कि आप किसके लिए कर रहे हो, कितना अमाउंट के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए हम पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी में हैं. रेजिडेंट्स पे सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि रेजिडेंट्स कितना बोरो कर सकते हैं बाहर से कि नहीं कर सकते, और रेजिडेंट्स बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इनके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है. व्हेन आई से रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, दैट मीन्स आपको बेसिकली फ्री नहीं है, आपको आरबीआई की परमिशन की जरूरत होती है, आरबीआई की परमिशन की जरूरत होती है. विदाउट दैट यू कैन नॉट डू ऑल दीज ट्रांजैक्शंस. ठीक है, एंड इफ यू डू देन अगेन यू विल कम अंडर द नेट ऑफ द टैक्स अथॉरिटीज एंड ऑल दीज अथॉरिटीज. ठीक है, तो ये इसको हम बीओपी का कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं, रूपी कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं. सो राइट नाउ एज थिंग्स stand, we are in the phase where we have current account convertibility and partial capital account convertibility. ठीक है, समझ में आएगा ये कंसेप्ट, समझ में आया. we'll talk more about this concept in Renu Kohli's article later on next semester, but logic समझ में आना चाहिए. the ability to convert rupee into dollar or dollar into rupee, that is basically convertibility, and how the ease with which you can do it without permission, that is basically the essence of convertibility. समझ में आया. Now, the next thing that we were doing was we had talked about the emergency that Indira Gandhi had imposed, and then why she lost, and then the upcoming new Janata Party governments, Morarji Desai की और चरण सिंह की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी. and then we were talking about the problems. ये हमने लास्ट में एंड में ये डिस्कशन किया था कि हमारा इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गई थी, एजेंसी प्रॉब्लम थी, एक्सटर्नल एंड एक्सोजेनस फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इकोनॉमी वाज नॉट एबल टू डू वेल,
and we see that there was a total neglect of the social sector as well. Now the neglect of social sector, extending from where we had left in the last class, when we talk about the lost opportunities, in this basically slide we are going to talk about that how even contemporary countries, जो उस टाइम पे 1960s 70s में हमारे साथ contemporary countries थी, वो कैसे सर्ज अप कर गए एज अगेंस्ट अस. तो हम कहाँ पीछे रह गए, वेराज ये हमारी जो कंटेम्परेनियस कंट्रीज थी वो कितनी ज्यादा तेजी से सर्ज अहेड कर गई. तो इफ यू सी इंडिया और चाइना देखो, इंडिया और चाइना का लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो 1960s में वेरी सिमिलर. साउथ कोरिया इज मार्जिनली अहेड. सिमिलरली इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखो, साउथ कोरिया ऑल्दो इट्स मच बेटर, बट इंडिया और चाइना देखो कंपैरिजन सिमिलर है. सिमिलर यहाँ भी कंपैरिजन काफी सिमिलर है. Now, what happened in by 1980? So this is what we are calling as the lost opportunity. और उसका impact यहाँ तक पड़ता हुआ आ रहा है. देखो इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एकदम से चाइना में बढ़ जाती है, बट इंडिया में सिर्फ 9 ईयर्स से बढ़ती है, whereas चाइना में ऑलमोस्ट 22-23 ईयर्स से बढ़ जाती है. And when we see here, तो यहाँ पर भी अभी भी इम्पैक्ट इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस साउथ कोरिया में डिफरेंस काफी ज्यादा है. The more important issue is कि आपने क्योंकि एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, ना नेहरू ने इन्वेस्ट किया, ना इंदिरा गांधी ने इन्वेस्ट किया, तो आपने बेसिकली पहले 40-50 साल कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया और आज तक नहीं इन्वेस्ट कर रहे. so the budget of your education is woefully low. ठीक है, तो आप अभी भी सेम उसी के ऊपर चल रहे हो. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन पे you spend somewhere around 3% of GDP, और which is very low, and इसको आपको कम से कम 6-7% of GDP करना है. And the way that all these countries progress, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, ये सारी कंट्रीज जितनी भी डेवलप हुई हैं पिछले 40-50 सालों में, इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन में बहुत पैसा खर्च करा है. हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ पे हमारा सिर्फ 1.5% है GDP का. 1.5% of GDP we spend on this. So because our investment in these social sectors is extremely poor, इसीलिए हमारे outcomes poor हैं. Let's see, चाइना, और अगर हम एडल्ट लिटरेसी की बात करें तो देखो एडल्ट लिटरेसी आज की डेट में भी हमारी समवेयर अराउंड 65-66 है, और वहाँ चाइना देखो इट्स ऑलमोस्ट टचिंग कोई भी डेवलप कंट्री. और एंड ये देख लो साउथ कोरिया देख लो. Not just this, I give you an example of the number of skilled people. आज से 3-4 साल पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, it had mentioned that इंडिया में सिर्फ 2% लोग हैं which is skilled workforce. Only 2% of India's workforce is skilled. ठीक है, only 2% of India's workforce is skilled. Whereas when you compare it with South Korea का 96% है, जापान का 80% है. So ये जो स्किल डेफिसिट हमारा हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया. और दूसरी चीज, हमने ना हेल्थ में इन्वेस्ट किया, और हेल्थ में देख लो हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज वे हायर देन ऑल दीज कंट्रीज. सिमिलरली आप मटर्नल मोर्टालिटी रेट देख लो. सो आई थिंक ज्योति विल बी टीचिंग यू द लास्ट रीडिंग ऑफ दिस यूनिट which is Amartya Sen and John Dray's book, India, I'm forgetting the name of the book. ठीक है, अनग्लोरी कुछ ऐसे करके है, अनग्लोरी करके कुछ बुक है. सो दैट बेसिकली शोज कि आपका, अगर आप इंडिया को डेवलप कंट्रीज छोड़ो, इंडिया को आप ब्रिक्स से भी कंपेयर करोगे, ब्रिक्स में भी किसी कंट्री से कंपेयर कर लोगे तो भी हम बहुत पुअर हैं. ठीक है, वेदर यू टॉक अबाउट IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, GDP पर कैपिटा, पॉवर्टी, ये कोई भी आप इंडिकेटर एजुकेशन में उठा के देख लो, कोई भी इंडिकेटर उठा के देख लो, इन सब में हम पीछे लैग बिहाइंड कर रहे हैं इन ऑल दीज सोशल इंडिकेटर्स. ठीक है, सो ये एक मेजर इशू है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पॉवर्टी, तो पॉवर्टी का देखो, पॉवर्टी 1950-1960 के बीच में पॉवर्टी जो थी, वी हैड 210 मिलियन पीपल, विच इज बेसिकली 21 crore people were poor. And by the time 80s end, ये 70s end हुए और 80s की बिगनिंग हुई, तो we had 33 crore people which were poor. और आज की डेट में अगर हम बोलते हैं तो ये तो आपका खैर ये जो फिगर्स हैं ये तो 2011-12. सो दीज आर द लेटेस्ट फिगर्स गाइस. हम ये एक रीडिंग पढ़ेंगे तेंदुलकर एंड रंगराजन की. तेंदुलकर इज द ऑफिशियल एस्टिमेट दैट वी टेक. ये हमारा ऑफिशियल एस्टिमेट है, हमारी ऑफिशियल फिगर्स हैं.
ठीक है। उसके बाद सी रंगराजन की भी वो आई थी, बट इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था, इसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। हम वी स्टिल गो बाय द तेंदुलकर डेफिनेशन, और वो तेंदुलकर डेफिनेशन के हिसाब से आज की डेट में हम अराउंड आई थिंक 13-14% पे पहुंच गए हैं। I'll tell you the figures कि क्या है, बट बिकॉज ऑफ कोविड ये वापस इंक्रीज हो गया होगा मैसिवली, ठीक है। बट फॉर दैट डेटा हैज टू कम, जब डेटा आएगा, जब सेंसस होगा, जब ये सैंपल सर्वेस होंगे, तब पता चलेगा कि हमारी पॉवर्टी अब कितनी है, ठीक है। बट द ऑफिशियल फिगर दैट यू हैव टू टेक इज दिस कि हमारा अब पॉवर्टी गिर गई है। और पॉवर्टी हमने कब गिराई है ये हम बात करेंगे कि जो 2004 के बाद वाला जो पीरियड है उसके बाद मेजरली हमारी पॉवर्टी गिरी है। इफ यू सी, कैन यू सी दिस गाइस, ये हम बाद में आई विल कम बैक टू दिस। 40 करोड़ लोग थे 2004 में, एंड वहां से 27 करोड़। तो ये जो आपने 13 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निकाला है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस पीरियड के अंदर आपका ग्रोथ रेट जो था वो बहुत ज्यादा हाई था। आप ग्रोथ रेट आपका हाई है, आपका पर कैपिटा ग्रोथ रेट भी हाई है, और प्लस आपने पुअर के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आए। So the UPA government was I mean, you have to appreciate the kind of schemes and the kind of innovative anti-poverty schemes that it brought about were magnificent. In terms, whether you talk about NREGA, which is again under UPA 1, then you talk about RTI, you talk about RTE, you talk about your right to employment, तो खैर आ ही गया है। तो ये सारी देन यू हैड एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी स्कीम्स थी, नेशनल फूड, नेशनल व्हाट वाज दैट स्कीम कॉल्ड, जस्ट अ सेकंड गाइस, व्हाट वाज दैट स्कीम, एग्रीकल्चर के लिए देयर वाज दिस स्कीम, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए स्कीम्स थी, एंड कृषि योजना, सम कृषि, राष्ट्रीय कृषि योजना अगर आप देखो तो आप एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे थे। देन फॉर द पुअर पीपल यू हैड गिवन, ये क्या कहते हैं, जो हम राइट टू फूड के बारे में बात करते हैं, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस जो आपने करा कि 5 किलो आप सबको 70% लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो हमने ग्रास रूट पे लोगों को इनकम प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ लीकेजेस बहुत होते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस यू सी अ ह्यूज फॉल इन पॉवर्टी, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इनइक्वालिटी, ठीक है, हमने गिनी कोएफिशिएंट के बारे में बात करी थी, एंड दिस रीडिंग आल्सो टॉक्स अबाउट द गिनी कोएफिशिएंट एंड द इनइक्वालिटी। व्हाट डू यू थिंक गाइस, इनइक्वालिटी पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुई होगी कि कम हुई होगी? व्हाट डू यू थिंक? आफ्टर 1991 इनइक्वालिटी आपको लगता है कि इंक्रीज हुई होगी कि कम हुई होगी? कम ऑन गाइस, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या फील होता है इनइक्वालिटी आसपास? ओनली मेगा सेज इंक्रीज, ओके गाइस। इफ यू सी, हमने गिनी कोएफिशिएंट के बारे में बात करी थी। गिनी कोएफिशिएंट किससे किसमें बीच में रहता है? गिनी कोएफिशिएंट रहता है बिटवीन 0 to 100 या 0 to 1। तो इफ यू सी, हमारा जो गिनी कोएफिशिएंट था, जस्ट अ सेकंड गाइस, हमारा जो गिनी कोएफिशिएंट था वो पहले कितना था इंडिपेंडेंस के टाइम पे? 35, ठीक है, 35 दिख रहा है। फिर उसके बाद हमने सोशलिस्टिक पॉलिसीज फॉलो करी, जो हम सोशलिस्टिक पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे, तो उसकी वजह से ये जो हमारा हमने पॉलिसीज फॉलो करा, ये आते आते 30.7 पे पहुंच गए। तो दैट मीन्स हमारी इनइक्वालिटी कम हुई। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर 1993 व्हेन वी हैव ओपनड अप द इकोनॉमी? तो इनइक्वालिटी आपकी वापस इंक्रीज हो गई है, और अब काफी ज्यादा हो गई है। देयर इज अ रीडिंग दैट वी विल स्टडी कि इनइक्वालिटी कैसे इंक्रीज हुई है। एंड इफ यू सी, हमारी रूरल सेक्टर में इतना इनइक्वालिटी में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। रूरल सेक्टर में देखो, रूरल सेक्टर के अंदर इतना इनइक्वालिटी का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट अर्बन एरियाज में इनइक्वालिटी जो हो गई है वो बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। सो एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी के अंदर अर्बन एरियाज में यू विल फाइंड आउट दैट इट विल बिकम एक्सट्रीमली इनइक्विटस। तो ये एक मेजर कंसर्न है इंडिया का, स्पेशली अर्बन, और इसी को हम बोलते हैं कि इंडिया में अर्बन पॉवर्टी अब धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। रूरल पॉवर्टी, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होती थी, वो अब कम होनी शुरू हो गई है।
people, because people have a lot of entitlements these days. फूड का entitlement है, then you have PDS में fair price shops पे आपको सस्ता खाना मिलता है, then you have a lot of schemes which are again, जो मैं UPA में बात बता रहा था आपको कि national family welfare schemes होती थी कुछ, जिसमें आप पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को खाना भी देते थे, आप पेंशन भी कुछ पैसे भी देते हो, डिसेबल्ड को आप 500 रुपये देते हो महीने का, विडोज को आप देते हो पैसा आई थिंक 500 रुपीज पर मंथ. सो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम करके बोलते थे इसको. आज की डेट में भी ये स्कीम रन करती है, उसके नाम चेंज हो जाते हैं बस, ठीक है. तो इसीलिए आपकी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो हमने ऑलमोस्ट इरेडिकेट कर दी है. But what we have now is a new phenomena which is coming, which is extreme inequality and poverty of the sense that आपकी urban poverty आनी शुरू हो गई है. क्योंकि एक तो अर्बन एरियाज में अफोर्डेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा, मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, एंड अफोर्डेबिलिटी जो होती है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है. तो और ये आपको सिटीज़ में ही दिख जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टे इन दिल्ली वर्सेज इफ यू स्टे इन गुड़गांव. एनीवन स्टेज इन गुड़गांव गाइस क्लास में? एनीवन स्टेज इन गुड़गांव? कोई नहीं है गुड़गांव से. तो अगर आप दिल्ली वर्सेस गुड़गांव को ही कंपेयर कर लो तो गुड़गांव इज अ मच मोर एक्सपेंसिव सिटी एज कंपेयर टू दिल्ली. तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो वैसे प्राइस फैक्टर्स हैं, और वेजेस का भी फर्क आ जाता है. ऐसा नहीं है, दिल्ली में जो वेजेस हैं और जो वेजेस है प्रॉब्ली इन गुड़गांव, उसमें भी डिफरेंस आ जाता है. तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. Now let's talk about what happened after this period. तो अब आज हम जो लास्ट पार्ट है रीडिंग का वो देखेंगे, जिसमें we will talk about the reform process after 1980. तो उसका पूरा एनालिसिस हमें अब देखना है. Let's talk about that. Now we had already talked initially about what were the reforms which were introduced by Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. So in the period of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, you had these hesitant policies, you had these piecemeal reforms जो हमने करे. So you had these hesitant policies, you had these piecemeal reforms in the sense कि आप selectively relax कर रहे थे. For example, आपको abolish कर देना चाहिए था MRTP, ठीक है. आपने कहा कि नहीं, चलो ये 20 करोड़ से इसकी लिमिट 100 करोड़ हो जाएगी. तो जो कंपनी जिसका वर्थ 100 करोड़ है और अबव है, सिर्फ वो MRTP के अंदर आएंगे, उससे नीचे वाले नहीं आएंगे. तो आपने इस तरीके से आपने थोड़े छोटे रिफॉर्म्स करे. आपने अपनी जो सिक एंटरप्राइजेस हैं, यू वांटेड टू रिवाइव देम. तो देयर वाज दिस बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रीफाइनेंसिंग, आपने वो सेटअप किया, BFIR बोलते हैं उसे. तो अब एग्जिस्ट नहीं करता, बट वो आपने शुरू किया. देन द रिफॉर्म्स, द कैरेक्टर ऑफ द रिफॉर्म्स दैट यू हैड इंट्रोड्यूस्ड वाज मोर ऑफ प्रो बिजनेस रादर देन प्रो मार्केट. तो आपने सेलेक्टिव बिजनेसेस को हेल्प करना शुरू किया रादर देन ओपनिंग अप फॉर द इंटायर मार्केट, ठीक है. तो दैट वाज वन थिंग दैट यू हैड इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पीरियड. एंड तो आपका जो रिफॉर्म्स था वो आपके इक्विटेबल रिफॉर्म्स नहीं थे कि नए प्लेयर्स आके भी एस्टैब्लिश हो जाएं. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे, आप उनको इनकम्बेंसी एडवांटेज देने की कोशिश कर रहे थे, और वो ही आपने किया. एंड द काइंड ऑफ पॉलिसीज दैट यू फॉलोड वाज टिपिकली एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी. तो जब आप एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी करोगे, और वो फिस्कल पॉलिसी कैसे फाइनेंस्ड है, वो फिस्कल पॉलिसी फाइनेंस्ड है थ्रू बोरोइंग. आपने बोरो करके मार्केट से बोरो करके आप बेसिकली एक्सपेंडिचर करे जा रहे हो. बट व्हाट विल हैपन इज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल नॉट बी एबल टू रीपे. क्योंकि इफ यू रिमेंबर कि हम फिस्कल डेफिसिट रन कर रहे हैं और हम हाई प्राइमरी डेफिसिट भी रन कर रहे हैं, ठीक है. तो एक टाइम आएगा जब उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो होगी वो बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, और क्योंकि उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड मोर ऑफ दीज लोन्स. तो ये जो आपने ग्रोथ अचीव करी, इस पीरियड का जो ग्रोथ है वो 5.6% का है. बट ये जो ग्रोथ आपने अचीव करी, एक ये मिड 80s के बाद की ग्रोथ है, ठीक है. ये लिखा है लेट 80s की ग्रोथ है, ये लेट 80s की वजह से ये ग्रोथ आई है. इसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ एग्रीगेशन. ये हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट रीडिंग के अंदर भी पढ़ेंगे. जस्ट नोट इट डाउन, दिस इज कॉल्ड एज फैलेसी ऑफ एग्रीगेशन. फैलेसी ऑफ एग्रीगेशन. Most of the growth of 1980s, हम कह रहे हैं 5.6% की ग्रोथ है, but most of this growth is coming from the later years where you had a very expensive fiscal policy.
to an extent that fiscal policy was unsustainable and that led us to the crisis of 1991. ठीक है, तो ये हमें फिस्कल डेफिसिट में भी नंबर में भी नजर आया था कि 10% फिस्कल डेफिसिट हो गया है बाय लेट 80s. Then because of the reforms, because of the crisis that happened, and I had told you that इस बीच में यहाँ पर कहीं पर इस बीच में आपका बहुत सारी और चीजें हुई. यू हैड द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, एक आपका मेजर अलाई जो है वो आपका कोलैप्स कर गया. Then and it sent basically a kind of a wave across the world that now we are no longer in a bipolar world, we are in a unipolar world. तो वो जो आयरन कर्टन था, दैट आयरन कर्टन इज बेसिकली बर्लिन वॉल बोलते हैं इसे हम. ठीक है, तो बर्लिन वॉल का जो सिंबॉलिक फॉल है बेसिकली इट ऑल्सो शोज दैट द वर्ल्ड इज नाउ बिकमिंग अ यूनिपोलर वर्ल्ड. तो आपका जो मेजर अलाई है वो खत्म हो गया. नाउ इज वर्ल्ड इज गाइडेड बाय यूएस एंड द यूरोपियन इकोनॉमीज. दूसरा, इस पीरियड के अंदर एक और एक्सटर्नल फैक्टर हुआ कि गल्फ वॉर हो गई. 1990 में इराक ने अटैक कर दिया कुवैत पे, बिकॉज कुवैत वाज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ ऑयल इन द मार्केट. और जब ऑयल ज़्यादा पंप करोगे तो क्या होगा गाइस? अगर ऑयल मार्केट में ज़्यादा पंप होगा तो क्या होगा? If a particular country pumps huge amount of oil into the market, the prices will fall. And Iraq was a very dependent and is a dependent economy on the price of oil. तो उसकी वजह से वो अपना लोन नहीं वापस कर पा रहे थे. तो इसलिए what it said was, सदाम हुसैन उस टाइम पे क्या कह रहे थे कि कुवैत इज बेसिकली स्टीलिंग आर ऑयल. बेसिकली वो कह रहे थे कि कुवैत ने, जैसे फॉर एग्जांपल ये कुवैत है, अगर आप मैप देखोगे तो कुवैत जो है बिल्कुल उस पे है गल्फ जो वो है स्ट्रीम है, सॉरी गल्फ स्ट्रीम नहीं, गल्फ वाला जो रीजन है उसके बिल्कुल एज पे है. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. ये अगर आपका गल्फ है तो बिल्कुल कुवैत यहाँ पर लाई कर रहा है और यहाँ पर इराक है. ठीक है, ये कुवैत है, ये इराक है. ठीक है, तो कैन यू सी दिस गाइस? ये देख रहे हो, ये आपका कुवैत है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कुवैत है और ये आपका इराक है. नाउ व्हाट बेसिकली सदाम हुसैन वाज सेइंग वाज कि आप बेसिकली कुवैत वाले जो हैं यहाँ से ऑयल ड्रिल करके किसी तरीके से इराक से ऑयल चुरा रहे हैं, यहाँ से ऑयल चुरा रहे हैं और वो पंप कर रहे हैं. तो इन्होंने इस पर अटैक कर दिया. तो फिर उसके बाद पूरा का पूरा एंड बेसिकली now he was also threatening पूरा सऊदी वाला रीजन एंड पूरा गल्फ वाला रीजन. तो यूएस ने अपना पूरा आर्मर्ड शिप्स वगैरह पूरा भेज दिया, गल्फ में खड़ा कर दिया एंड पूरा एक कोऑर्डिनेटेड यूएन के साथ एफर्ट लेके द गल्फ वॉर स्टार्टेड. एंड ये पूरा इराक का जो पूरा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. तो उसकी वजह से अगेन ऑयल प्राइसेस एकदम से, जब गल्फ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो ऑयल का प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे. तो ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो उसकी वजह से हमारे पास हमारा इंपोर्ट बर्डन बढ़ गया. तो उसकी वजह से अगेन हम रीपे नहीं कर पा रहे थे. तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ गया और क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, एंड दूसरा हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ गया. तो उसकी वजह से इनको जो हम बोलते हैं ट्विन डेफिसिट्स, तो ये हमारे ट्विन डेफिसिट्स बढ़ गए एंड इसकी वजह से हमारा क्राइसिस आ गया. देन वी वेंट टू IMF दैट प्लीज रेस्क्यू अस. नाउ IMF व्हाट इट डिड वाज, इट सेड दैट यू हैव टू ओपन अप योर मार्केट, यू हैव टू अलाउ फॉर व्हाट इज कॉल्ड, जिसको आप LPG बोलते हो ना, उसको ओरिजिनली हम रीगनिज्म एंड थैचरिज्म बोलते हैं. ठीक है, रीगन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ US इन 1980s एंड मार्गरेट थैचर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK. इन्होंने बेसिकली शुरू किया था व्हाट इज कॉल्ड एज न्यू लिबरलाइजेशन. Why is it called neoliberalization? Neoliberalization हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जो ओरिजिनल लिबरल्स कौन होंगे गाइस इन इकोनॉमिक्स? who would be the original liberals? A test of macroeconomics. बताओ, who would be the original liberals? कौन शुरू में बोलता होगा कि सब कुछ मार्केट के हाथ में छोड़ दो बॉस? Come on guys, कौन आपके हिसाब से ओरिजिनल लिबरल्स होंगे? जब आप कह रहे हो न्यू लिबरलाइजेशन, दैट मीन्स एक नया वर्जन लेके आ रहे हो. दैट मीन्स उससे पहले भी कोई लिबरल होता होगा. अभी क्लास में मैं उसके बाद कॉल करूँ गाइस. कम ऑन मैक्रो चैंपियंस. अरे गाइस, कौन बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कौन बोलता है लाजे फेयर की पॉलिसी, मार्केट में इंटरवेंशन मत करो? हे भगवान,
क्या बोल रहे हो सावित्री? कीन्स तो एग्जैक्टली ऑपोजिट बोलता है, ठीक है, तो ही इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट दिस थ्योरी इज। क्लासिकल्स बोलते हैं गाइस, क्लासिकल्स बोलते हैं ना मार्केट पे सबको छोड़ दो, मार्केट अपने आप सारा ध्यान रख लेगी हर चीज का। तो उनको हम उनको इकोनॉमिक्स में लिबरल्स बोलते हैं, द अल्टीमेट लिबरल्स। कीन्स ने आके क्या बोला? कीन्स ने आके बोला कि बॉस मार्केट सारी अपने आप खराब हो जाएगी, ये जो क्राइसिस हुआ है इसलिए हुआ क्योंकि आपने सबको छोड़ दिया। और फिर कीन्स ने क्या कहा? कीन्स ने कहा कि आपको गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को ज्यादा रोल प्ले करना पड़ेगा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लेके आएगी, बोरोइंग करेगी, चीजें बनाएगी, तो मार्केट खुलनी शुरू होगी। तो उसके बाद का जो पीरियड है वहां पर कीन्स की थ्योरी का बहुत ज्यादा वो ना डोमिनेंस होना शुरू हो जाता है। एंड बट उसकी वजह से अराउंड दी वर्ल्ड बहुत सारी इनएफिशिएंसीज होती हैं और जो गवर्नमेंट का रोल है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। मार्गरेट थैचर एंड रोनाल्ड रीगन ने वापस ये गवर्नमेंट का रोल को कंट्रोल करना शुरू किया, कम करना शुरू किया। इसी को हम बोलते हैं न्यू लिबरलाइजेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वी कॉल दिस एज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और हम इकोनॉमिक्स में, ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिवली, इकोनॉमिक्स में हम इसको न्यू लिबरलाइजेशन बोलते हैं, जहां पर हम मार्केट का रोल जो है इंक्रीज करने की कोशिश करना है। समथिंग सिमिलर टू व्हाट हैज हैपेंड इन द एजुकेशन। आज जाके हम एजुकेशन सेक्टर में वी कैन सी कि मार्केट का रोल बढ़ना शुरू हो गया। इफ यू सी व्हाट बायजूस इज डूइंग, इफ यू सी कमिंग अप ऑफ ऑल दीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज व्हिच आर नाउ कंपीटिंग एक्सट्रीमली हार्ड विद द पब्लिक सेक्टर। तो ये आपका अब आया न्यू लिबरलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज वेल। तो उसकी भी प्रोज एंड कॉन्स है, क्योंकि जब भी न्यू लिबरलाइजेशन होगा व्हाट विल हैपन, देयर विल बी पीपल हु कैन अफोर्ड इट, देयर विल बी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट। सो द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट हैव टू गो टू द पब्लिक एजुकेशन, बट पब्लिक एजुकेशन को भी आपको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है एट द सेम टाइम। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली चीजें चलती हैं। इट शुड नॉट बी द केस कि प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग हो जाए कि पब्लिक उसके साथ compete ही ना कर पाए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंड इन दिस पीरियड। तो हमने उनके अंडर IMF के अंडर हमने वॉशिंगटन कंसेंसस को अग्री किया। एंड वॉशिंगटन कंसेंसस में हम बेसिकली बोलते हैं कि हाँ बॉस, हम प्राइवेटाइजेशन अलाउ करेंगे, हम गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट कम करेगी, गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन लेके आएगी, ये सारी की सारी चीजें वॉशिंगटन कंसेंसस के अंदर आती हैं। तो आपने रोल बैक किया अपने कंट्रोल्स, आपने क्वांटिटेटिव इंपोर्ट्स जो है उनको चेंज किया, आपने अपनी करेंसी जो आपकी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे थी आपने उसको मार्केट डिटरमिन कर दिया, आपने इंपोर्ट टैरिफ कम किए। पहले आपके पास यू विल अंडरस्टैंड इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अभी आपके पास आएगा अगले नेक्स्ट वन एंड हाफ मंथ्स में आप देखोगे समथिंग कॉल्ड एज कोटाज, ठीक है। कोटाज से यू मूव टुवर्ड्स टैरिफ्स, इसको बोलते हैं टैरिफिकेशन। एंड इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यू विल अंडरस्टैंड कोटाज वर्सेस टैरिफ का एक न्यूमेरिकल भी आता है और या फिर एक क्वेश्चन भी 100% आता है, सिविल्स में भी आता है। तो ये कोटाज को टैरिफ में आप जब माइक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में आप कंपेयर करते हो तो कौन सा ये कैसे एफिशिएंट है, दिस इज मच मोर एफिशिएंट देन दिस। तो ये भी हमने इसी पीरियड के अंदर करा। हमने FDI और FII इंकरेज किया, इन्वेस्टमेंट लाइसेंसिंग जो है वो स्क्रैप करी, तो आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन ईज आउट करने की कोशिश करी। तो इस पीरियड में हमारा ग्रोथ रेट जो है वापस रिवाइव किया अराउंड 5.5% के अराउंड। बट व्हाट हैपेंड इन द मिड ऑफ 1990s till 2002-2003 was that first 1997 में there was ASEAN crisis, और जब ASEAN crisis आया तो to save ourselves what Bimal Jalan, who was the RBI governor at that point of time, did was उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेट्स जो है ना जो इंटरेस्ट रेट्स है वो इंक्रीज कर दिए। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, तो आपका GDP अपने आप कम हो जाएगा। तो टू सेफगार्ड द इकोनॉमी फ्रॉम द ASEAN क्राइसिस वी टुक अ नंबर ऑफ स्टेप्स। एंड आपका उसी पीरियड के अंदर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल स्लो डाउन भी साइमल्टेनियसली आता है। 2000 से लेके 2002 के बीच में इंडिया में ड्रॉट बहुत सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। दिस इज व्हेन एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज स्टार्ट्स टू हिट इंडिया सीरियसली। तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज एल नीनो, दीज आर टिपिकली योर एल नीनो ईयर्स। किसी ने सुना है एल नीनो? आई एम श्योर कोई ज्योग्राफी ऐसी नहीं हो सकती जिसमें आपने 8th 9th 10th क्लास के अराउंड इन क्लासेस में कहीं ना कहीं एल नीनो जरूर पढ़ा होगा। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि पेरुवियन कोस्ट के ऊपर ना नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है
यहाँ पर ये आपके ओशन करंट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका करंट चल रहा है इसको हम हम्बोल्ट करंट बोलते हैं। इट्स अ कोल्ड करंट। यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपका अंटार्कटिका है, यहाँ पर पानी, यहाँ से पानी जो है वो ठंडा होता हुआ यहाँ से यहाँ जाता है, तो ये यहाँ पर ये कोल्ड करंट चल रहा होता है, दिस शुड बी अ कोल्ड करंट। और फिर इक्वेटोरियल जो हमारा जो बेसिकली करंट सिस्टम होता है वो इस तरीके से इस साइकिल में घूमता है, ऐसे इस तरीके से इस साइकिल में घूमता है, यहाँ पर आके वो गर्म हो जाता है। और जब भी गर्म पानी होगा तो क्या होगा, जब भी गर्म पानी होगा तो उसकी वजह से इवेपोरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो विंड्स होंगी बेसिकली हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स जाती हैं। तो यहाँ पर कोल्ड वाटर है तो यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर है, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये विंड्स जा रही है और यहाँ पर बारिश होती है, और ये भी कनेक्टेड है आपस में। देयर इज अ प्लेस हेयर कॉल्ड मैस्करीन करके एक जगह है, तो यहाँ से और इनके बीच में भी लिंक्ड है। दिस इज बेसिकली केओस थ्योरी या बटरफ्लाई इफेक्ट आप बोल सकते हो इस चीज को, ठीक है। ये भी आपस में लिंक्ड है, ये भी आपस में एक सर्कल में लिंक्ड है इन टर्म्स ऑफ हाई प्रेशर और लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बनना चाहिए। जब आपका यहाँ हाई प्रेशर बनता है तो उसकी वजह से ये जो अब आजकल हम रेनफॉल जो देख रहे हैं वो किस लिए देख रहे हैं, क्योंकि समर्स के टाइम में क्या हुआ, समर्स के टाइम में यहाँ पर इंडिया में टिबेट वाले जो इंडिया और ऊपर वाले रीजन में यहाँ पर लो प्रेशर बन गया है, क्यों, बहुत ज़्यादा लैंड गर्म हो गई है। तो यहाँ से ये जो विंड प्रेशर्स है वो यहाँ से इस तरफ से इंडिया की तरफ आता है और इसको हम मानसून बोलते हैं, ठीक है। मानसून इज बेसिकली रिवर्सल ऑफ विंड्स। तो ये प्रोसेस जो है इसके लिए यहाँ पर हाई प्रेशर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आएगी। अगर ये हाई प्रेशर खत्म हो जाएगा तो इंडिया में ड्रॉट आ जाएगा, और वही एग्जैक्टली होता है जब अब एल नीनो ईयर्स में होता है। एल नीनो ईयर्स के अंदर यहाँ पर ये जो साइकिल ये रिवर्स हो जाता है, यहाँ पर अब आपके पास यहाँ पर वार्म वाटर हो जाता है। अगर यहाँ वार्म वाटर हो जाएगा और यहाँ कोल्ड वाटर हो जाएगा तो आपका विंड डायरेक्शन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर यूजली दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट, दिस इज अ डेजर्ट पूरा का पूरा, ये चिलियन डेजर्ट होता है। तो ये जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई डेजर्ट माना जाता है वर्ल्ड का, बट यहाँ पर सडनली बहुत ज़्यादा बारिश होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है। तो वाइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ये मैस्करीन हाई जो है इस पर अब हाई प्रेशर नहीं बन पा रहा है, और बिकॉज हाई प्रेशर नहीं बन पा रहा है इसीलिए वो अब यहाँ पर इंडिया पे जो विंड्स आएंगी वो इतनी स्ट्रांग नहीं आएंगी, और इसलिए इंडिया में यहाँ पर अब ड्रॉट हो जाएगा। तो ये बेसिकली दिस इज अ कनेक्शन। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ इट, देयर इज समथिंग कॉल्ड वॉकर सेल यहाँ पर, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू कि वो वॉकर सेल क्या है और डायनेमिक्स क्या है। इसको अभी मैंने इस तरीके से दिखाया, इसको मुझे दूसरे एंगल से भी दिखाना चाहिए था कि लैंड के एंगल से किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इसको दो एंगल्स में दिखाना पड़ता है, बट समझ में आया, ब्रॉडली समझ में आया गाइस। ज्योग्राफी थोड़ी सी रिवाइज हो गई होगी बट ब्रॉडली समझ में आया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम कई बार बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, ये इम्पैक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग है। पहले भी होते थे बट अब कुछ ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट होना शुरू हुए, और उसकी वजह से बाय द वे यहाँ पर फायर्स होनी शुरू हो जाती है। इफ यू माइट हैव हर्ड, इट इज पीरियोडिकल बट द इंटेंसिटी हैज बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड मच मोर फ्रीक्वेंट। इस रीजन में जो है ना, इस रीजन में यू माइट हैव हर्ड कि ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 1-2 साल में बहुत तेज फॉरेस्ट फायर्स होने शुरू हो गए थे। तो उसका भी रीज़न एक यही है, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है, उसकी वजह से कई बार फॉरेस्ट फायर्स भी बहुत तेज़ी से हो जाते हैं, ठीक है। तो खैर, आई एम नॉट गेटिंग इनटू ज्योग्राफी बट यू शुड हैव अ कंसेप्ट, एंड आई नो दिस बिकॉज ज्योग्राफी बिकेम माई फेवरेट सब्जेक्ट even before economics while studying for UPSC. So kind of, although I don't recollect everything, but still I try to be in touch. Coming to our discussion, if we see about this, तो ये जो ड्रॉट्स हुए उसकी वजह से इंडिया का इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, एंड वी वर ऑल्सो हैविंग वेरी हाई फिस्कल डेफिसिट इन दिस पीरियड। हमने वापस अपना जो 1993 1991 जो हम कर रहे थे वो हम बहुत तेज़ी से करने लग गए थे। यहाँ पर मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट एंड बोरोइंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम RBI। उसके बाद हमने इसको करेक्ट करने की कोशिश करी इन द पीरियड ऑफ 2003 to 2008। ये पीरियड था जहाँ पर हमारा ग्रोथ रेट एकदम से इंक्रीज हुआ। we had what this period is basically described as the golden period of growth, where your average growth rate was somewhere around 8 to 8.5%. It was boosted by
massive investment in massive investment rates. हमारा investment rate at a particular point of time almost 39% पहुंच गया था. Now when I say high, this growth rate was unprecedented to the level that we had reached, 8.5% growth rate, and this was fueled by a very high level of investment. So हमारा जो GCF है, gross capital formation जो है, at in 2007-2008 it had reached 38.9% or 39%. ठीक है, तो इतना तेजी से हम ग्रो कर रहे थे, एंड इफ यू डिवाइडेड बाय 4 यू विल फाइंड आउट द ग्रोथ रेट एज वेल. आई हैड टॉट यू अबाउट द ICOR कंसेप्ट. एंड सेविंग्स रेट भी जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था इस पीरियड के अंदर. तो इट वाज सेड दैट इन वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट दैट इंडिया हैज फाइनली अराइव्ड एंड इंडिया इज a major powerhouse of Asia after China, and it's now going to give China good run for its money in terms of competition, economic competition. However, this growth was one of the major factors of this growth was huge corporate investment, corporatization of India. इसी period में you see a lot of major brands coming to India, real estate companies coming to India, और बहुत बड़ी बड़ी companies बनी. इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी कंपनीज आई, इंडस्ट्रीज में बहुत सारी कंपनीज आई, तो बहुत एविएशन हमारा काफ़ी चेंज हुआ. तो इस पीरियड में कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ. एंड वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स वाज बिकॉज ऑफ लेवरेज. इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ था. ये जो पीरियड था, दिस वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी अक्रॉस द वर्ल्ड. बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा था, एंड अ लॉट ऑफ मनी वाज कमिंग फ्रॉम ऑल सोर्सेज टुवर्ड्स इंडिया. एंड इंटरेस्ट रेट्स इन जनरल थोड़े से लो चल रहे थे, एंड इंडियन इकोनॉमी वाज बुलिश. तो इंडियन बैंक्स जो थे वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे क्रेडिट क्रिएशन कर रहे थे, खूब लोन दे रहे थे लोगों को. वेदर एट टाइम्स वो पॉलिटिकल रीजन हो या फिर कोई बंदा उसको लोन देना भी चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सारी डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर रहे थे, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स. तो इसकी वजह से लेवरेजिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, कॉर्पोरेट लेवरेजिंग. एंड बिकॉज ग्रोथ बहुत अच्छा था, एंड वी हैड एक्ट कॉल्ड FRBN, जिसके बारे में हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था. वी वर ऑल्सो ट्राइंग टू कंसोलिडेट आवर फिस्कल डेफिसिट्स. तो हमने अपना फिस्कल डेफिसिट ऑलमोस्ट 3% ऑफ GDP पे कर लिया था, और रेवेन्यू डेफिसिट ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था इस पीरियड के अंदर. तो हमारा ऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर इन गुड स्टेट. But what happened in 2008 was that you had this global financial crisis. तो ये जो ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसके ओरिजिन्स तो यूएस में थे, बट बिकॉज एनीथिंग दैट हैपेंस टू यूएस इट हैज़ अ डोमिनो इम्पैक्ट ऑन यूरोप, एंड बिकॉज वो इतना कमांड ज़्यादा करते हैं इकोनॉमी में, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होता है. So although we did not have a direct exposure, हमारे बैंक्स का डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं था. You have to remember that at this point of time we had a very proficient and very efficient governor at helm, whose name was D. Subba Rao. So his policies had actually restricted India's exposure to these global instruments, financial instruments, which are very unstable instruments. Something like credit default swap and credit debt, your mortgage backed securities. इन सब में हमने हमारा इन्वेस्टमेंट जो था वो बहुत कम था, और क्योंकि हमारा एक्सपोजर डायरेक्टली कम था, इसीलिए क्या कहते हैं, हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट कम था. बट बिकॉज we are living in a globalized world, anything that happens in the major part of the world economy also has an impact on us. तो उसकी वजह से हमारा भी स्लो डाउन हुआ. नाउ जब स्लो डाउन आया 2008-2009 में, हमारा जो ग्रोथ रेट था 2008-2009 का ग्रोथ रेट जो था वो हमारा 6.4% का हो गया, फ्रॉम 9.5% इन द प्रीवियस ईयर. तो क्योंकि ये स्लो डाउन हुआ, इसको काउंटर करने के लिए प्रणब मुखर्जी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ही इंट्रोड्यूस मैसिव फिस्कल एक्सपेंशन स्कीम्स. तो फिस्कल एक्सपेंशन, इंटरेस्ट रेट एकदम लो कर दिया, और मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारी अकोमोडेटिव हो गई, टैक्सेस बहुत तेजी से काट दिए हमने. तो उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं मुखर्जी स्टिमुलस. एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टिमुलस हमारा 2009 से 2011 तक का जो ग्रोथ रेट है वो वापस 8% प्लस पे पहुंच गया, 7.5-8% के बीच में हमारा पहुंच गया. तो वी अगेन जंप बैक. बट 2011 से लेके 14 तक वापस गिर गए नीचे. इसको बोलते हैं हम डबल डिप रिसेशन. पहले एक रिसेशन आया, फिर वापस इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद नीचे आया. इसको हम बोलते हैं डबल डिप रिसेशन.
ये वाला जो पीरियड है डबल, दूसरा जो डिप है डबल डिप रिसेशन टाइप, वर्ल्ड में डबल डिप रिसेशन आया। उसके एक्सटर्नल रीजंस भी थे। फॉर एग्जांपल इस पीरियड में आपका ब्रेग्जिट वाली बात होनी शुरू हो गई, यूरोजोन में क्राइसिस होना शुरू हो गया, यूरोजोन का क्राइसिस, ब्रेग्जिट का इशू आना शुरू हो गया, चाइना के अंदर स्लो डाउन शुरू हो गया। डोमेस्टिक फैक्टर्स के अंदर हमारे खुद के पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे इस टाइम पे। कॉमनवेल्थ स्कैम आ गया, कोलगेट का स्कैम आ गया, यू हैड 2G का स्कैम मार्केट में आना, मतलब न्यूज़ में आना शुरू हो गया। एंड जो हमारे जो लोन्स थे इस पीरियड में, जो हमने लोन दिए थे, जो हमने इनडिस्क्रिमिनेट लोन इस पीरियड में उस पीरियड में दे रहे थे, वो दोज लोन स्टार्टेड टू टर्न सार, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट धीरे धीरे मार्केट में बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा था मार्केट के अंदर इस पीरियड में। इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए क्या करेगा गाइस, आरबीआई क्या करेगा जब भी इन्फ्लेशन होगा? व्हाट विल आरबीआई डू? ऑल्दो आरबीआई ने आज ही मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई, उसमें कुछ नहीं किया, बट यूजुअली जब इन्फ्लेशन होता है तो क्या करता है आरबीआई? इंक्रीज करता है। व्हाट इज दैट पॉलिसी रेट स्वस्ति? व्हाट इज इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट इन इंडिया? व्हाट इज इट कॉल्ड? एनी आइडिया गाइस? व्हाट इज दैट पॉलिसी रेट कॉल्ड इन इंडिया? इट्स कॉल्ड एज रेपो रेट। रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट बोलते हैं। तो हमने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया, हमने अपना रेपो रेट बढ़ाना शुरू, आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ाना शुरू किया। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्लैशेस हुए बिटवीन फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड मिंट स्ट्रीट की। फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रहे नहीं रेपो रेट आप इंटरेस्ट रेट्स कम करो। आरबीआई गवर्नर बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, उसने कहा कि नहीं बॉस मैं नहीं करूँगा। तो यूजुअली ऐसी लड़ाई चलती थी बिटवीन फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड मिंट स्ट्रीट। तो रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो मार्केट में जिन लोगों ने बोरो किया हुआ था खूब सारा पैसा, वो लोन नहीं वापस चुका पा रहे हैं, तो एनपीएस होना शुरू हुआ। और एनपीएस जो बैंक्स थे वो छुपाना शुरू हो गए। उन्होंने क्या किया, आप बजाय कि दिखाने की बजाय कि ये बंदा लोन नहीं दे रहा, उसको फ्रेश लोन दे दिया कि कोई बात नहीं, तुम इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी लोन ले ले मुझसे। इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। तो हमने एवरग्रीनिंग ऑफ लोन शुरू कर दिया इस पीरियड के अंदर। तो एनपीए हम आर्टिफिशियली हाइड करना शुरू कर दिया अपने सिस्टम के अंदर, और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी पुअर था। ये एनपीएस का पता चला जब रघुराम राजन केम टू द हेल्म ऑफ मिंट स्ट्रीट, एंड व्हेन ही सेड दैट गो फॉर ऑल बैंक शुड गो फॉर अ एसेट क्वालिटी रिव्यू, कि अपने एसेट्स की क्वालिटी चेक करो। तब पता चला कि यार एनपीए तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया इंडिया के अंदर, एंड देन द रेजोल्यूशन स्टार्टेड। एंड उसके बाद हम आज की डेट में देखते हैं कि एनपीए को रिजॉल्व करने के लिए वी हैव सेपरेट मैकेनिज्म लाइक योर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये सारा लेगेसी इश्यूज यहाँ से शुरू हुआ। तो हमारी जो रीडिंग है वो इसी पॉइंट पर खत्म हो जाती है 2015 विद द कमिंग अप ऑफ एनडीए गवर्नमेंट, जहाँ पर आपका ग्रोथ रेट वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बिनाइन एनवायरनमेंट होता है, आपका ऑयल प्राइसेस जो थे वो कम हो जाने शुरू होते हैं। इस पीरियड में एक और क्राइसिस आया कि ऑयल प्राइसेस जो थे वो हिस्टोरिक हाई पे पहुंच गए, $130 पर बैरल पहुंच गया, जबकि जैसे ही एनडीए गवर्नमेंट आया तो वो $40 पर बैरल पहुंच गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विंडफॉल गेन्स होने शुरू हो गए, करंट अकाउंट डेफिसिट एकदम से कम हो गया। नया मैंडेट आया नई सरकार के पास, तो उसने फिस्कल रिफॉर्म्स के बारे में बात करी, एफडीआई रिफॉर्म्स के बारे में बात करी, एंड हम इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट थोड़ा बेटर करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बिटवीन 2014 to 2018 वाज अगेन अराउंड 6 to 7%। रेंज यही था, बीच में 8% भी था, डिपेंडिंग ऑन व्हाट फिगर्स डू यू टेक। It came down to around 7.5% in 2017-2018, and then in 2018-2019, and then in 2019-2020 it fell down to somewhere around 4.3%। and अब कोविड की वजह से लास्ट ईयर तो कह रहे हैं एनी केस -7% का हमारा लॉस है, एंड इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 9.5%। तो ये हम डिस्कशन हमारे स्कोप से बाहर है, बट द ओवरऑल डिस्कशन यू शुड नो दैट व्हाट हैपेंड। Now, to conclude our entire understanding, we also need to get back to poverty, that what happened in terms of poverty and inequality. If we go by Tendulkar's report, जो हमारी official report है, हम official report टेंडुलकर की लेते हैं, तो we see that from 1993 onwards poverty का जो इस पीरियड में नहीं, but 2004 से लेके 2011 के बीच में we had a massive reduction of poverty, and that massive reduction of poverty was because of the kind of policies that we had followed. इस पीरियड में हमने बहुत सारी एंटी पुअर पॉलिसीज जो थी वो करी थी। फॉर एग्जांपल जैसे राइट टू फूड हो गया, एनआरईजीए हो गया, राइट टू वर्क हो गया, एनआरईजीए, ठीक है। मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,
ठीक है, एग्रीकल्चर को आपने टारगेट करना शुरू किया, हर स्टेट को 4% ग्रोथ रेट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर में। ठीक है, आपने एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत सारी स्कीम्स करी, आपने पूरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम ये शुरू करी। ठीक है, आपने राइट टू एजुकेशन में लोगों को बोला कि आप अपने बच्चों को एजुकेट करो, तो आपने बहुत सारे लीगल राइट्स प्रोवाइड करे लोगों को, जिसकी वजह से बॉटम ऑफ द पिरामिड के पास भी इनकम पहुंचा। एंड इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंडिया वाज ग्रोइंग at a very fast pace, therefore India could afford to allocate a lot of money to these sectors. There's a scheme called Bharat Nirman, जिसके अंदर मल्टीपल स्कीम्स विद इन दैट मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स थी। तो आपने बहुत सारी ये जो स्कीम्स करी थी उसकी वजह से आपका पॉवर्टी रिडक्शन जो था वो बहुत तेजी से हुआ है इंडिया के अंदर। वेदर यू टॉक अबाउट दिस, और अगर हम बात करें इसकी रंगराजन रिपोर्ट की, तो रंगराजन रिपोर्ट के हिसाब से we are somewhere around 36 crore people who under poverty. उनका methodology different है, we will talk about this methodology when we go to our third unit. ये मैं डिटेल में बताऊंगा methodology, and it's very important because often a question is asked on this and it's a very favorite topic of UPSC as well. ठीक है, but when we talk about inequality, as I told you कि इस पीरियड में आपकी inequality कम हुई, but इस पीरियड के बाद से आपके post liberalization we see that the inequality has increased. And the pattern of inequality is such that the urban inequality has increased to a large extent, and thereby urban poverty becoming a main issue these days, and extreme poverty perhaps has now been eradicated from India as we speak of in 2019, but we need to reassess in the post-COVID world. So this was about it, guys. The overall analysis. If you have questions, I'll be happy to take them. किसी को कोई क्वेश्चन हो, सो वी आर, आई विल जस्ट शो यू द रीडिंग्स एज वेल गाइस। लेट मी शो यू द रीडिंग। ये देखो रीडिंग देख लो, हमने आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि हमने रीडिंग पूरी खत्म कर ली है। ये हमारी रीडिंग शुरू होती है, वो शुरू की ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फिर ये वाला हमने पूरा टेबल पढ़ा था, फिर वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक नैरेटिव की हमने बात करी थी कि क्या क्या हुआ, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन पूरा करा। ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया, जनता पार्टी कैसे पावर में आई, फिर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमने देखा कि वो क्यों फेल टू परफॉर्म हो गए थे। कैपिटल आउटपुट रेशो के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा डिस्कशन हुआ। देन एजेंसी प्रॉब्लम के बारे में हमने बात करी थी, ये एजेंसी प्रॉब्लम के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, फिर हमने परफॉर्मेंस देखा, हमारा परफॉर्मेंस ही हमने आज टेबल के अंदर देखा, ये सारा परफॉर्मेंस इंडिया का विद कंटेम्प्रेरी कंट्रीज। ये पॉवर्टी का रिडक्शन के बारे में हमने पूरी बात कर लिया आज। ठीक है, द सेम टेबल। पॉलिटिकल बैकड्रॉप, ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि कैसे पॉलिटिक्स चेंज हुआ आफ्टर 1980s, ऑल दैट वीपी सिंह गवर्नमेंट्स, एंड देन उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट, एंड देन जो डेकेड था जिसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। ठीक है, एंड देन उसके बाद हाउ दिस न्यू गवर्नमेंट केम टू पावर, पहले अटल बिहारी वाजपेयी की, फिर उसके बाद एनडीए, यूपीए 1 यूपीए 2। ठीक है, ये सारी हमने पॉलिटिक्स के बारे में ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कशन किया। एंड आज जो हमने डिस्कशन किया पार्शियल रिफॉर्म सिंस 1980, ये पूरा डिस्कशन हमने किया। आई वुड स्टिल अर्ज यू टू रीड अबाउट द वॉशिंगटन कंसेंसस रिपोर्ट, सर्च करके इसको पढ़ना। एंड ये हमने बबल बर्स्ट के बारे में बात करी, स्लो डाउन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, डी लेवरेजिंग के बारे में बात करी, ओवर बोरोइंग करी थी हमने उस पीरियड के अंदर, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी। एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी के हमने अभी बात करी कि हमारी पॉवर्टी इन दी पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हमारी बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ करी है, बट इनइक्वालिटी जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। इनइक्वालिटी का जो फैक्टर्स हैं, कंजम्पशन इनइक्वालिटी, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। That's it, guys. That's about the reading. You can go through the reading. It's already marked. I've already sent it to you. What I'll do is I'll also send you the PPT now, since the PPT is complete. So you can go through the PPT. Crowding out जो था इस पीरियड के अंदर, जब आप ज़्यादा बोरो करोगे तब आपका क्राउडिंग आउट आता है। ठीक है, बट the thing was that during the period of 2003 to 2007 there were multiple options available for financing. For example, अगर आपको इंडिया से फाइनेंस नहीं करना तो आप बाहर से फाइनेंस कर लो। देयर समथिंग कॉल्ड फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, आप वहाँ से बाहर से ले सकते हो, बोरो कर सकते हो। आप पब्लिक सेक्टर बैंक से ले सकते हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक से ले सकते हो, आप क्या कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बैंक से ले सकते हो। तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज थे और इंटरेस्ट रेट जनरली कम था, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी फ्लोइंग इनटू द सिस्टम, और वो जो मनी जो फ्लो हो रहा था उसकी वजह से सिस्टम इज फ्लश विद मनी, देन द क्राउडिंग आउट फैक्टर, अगर गवर्नमेंट बोरो भी कर रहा है थोड़ा बहुत तो वो इतना इशू नहीं था। और इस टाइम पे वैसे भी गवर्नमेंट बोरो नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट कंसोलिडेट कर रहा था इस पीरियड के अंदर।
क्राउडिंग आउट मेजर इशू पड़ता है जब मार्केट में फंड्स की कमी होनी शुरू हो जाए और गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, ठीक है, तो तब मेजरली क्राउडिंग आउट का एक इशू आना शुरू हो जाता है। समझ में आया स्वस्ति?